ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ। ਸੋ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। तो चीफ जस्टिस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। तो ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 370 ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ। ਸੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ फैसला जड़ा कि यह बरकरार रहेगा। केंद्र सरकार का जो फैसला सी अपील रिव्यू पेटिशन डाली जा सकती है, कुरेटिव पेटिशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। Sir, how do you see the judgment of Supreme Court on Article 370? I, being the president of Supreme Court Bar Association and All India Bar Association and International Council of Jurists, I welcome the judgment of Honorable Supreme Court given by the senior most 5 judges of our highest court, and that is in accordance with law. The senior lawyers like us, as already Mr. Kapil Sibal, before the pronouncement of the judgment, he already accepted that this decision, we are losing this, but this day will be remembered. Yes, I fully agree. This day is historical for those who are nationalists, and it is also historical for those forces who were acting against the interest of India. But in future, there will be no occasion when this Article 370 will become the part of Indian Constitution. आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने फैसले लिए जा चुके हैं उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35 के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकार का भी जिक्र किया और इलेक्शन के बारे में भी इलेक्शन भी होने चाहिए सितंबर तक, और साथ में स्टेट बोर्ड की भी बात कही। राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बार बार वहां दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि जब वहां पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा भंग है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां 370 नहीं हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35 नहीं हटाया जा सकता है।
वो जो प्रक्रिया अपनाई गई गलत अपनाई गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो राष्ट्रपति ने वहाँ पे प्रक्रिया अपनाई है उसमें कोई खामी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके थ्रू एक मेमोरेंडम के थ्रू जहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें भी कोई खामी नहीं, वो बिल्कुल वैलिड है। तो अल्टीमेटली नटसल में ये कह सकते हैं कि अब आज की डेट से 335A और 370 इतिहास हो चुका है। इतिहास तो पहले ही हो गया था जब सरकार ने हटा लिया था, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसको जिंदा किए हुए थे कोर्ट के माध्यम से। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि 5 जजों का एक पक्ष का फैसला है, कोई भी जजों में मतभेद नहीं है। 5 के 5 जजों ने कहा है कि केंद्र सरकार का फैसला ठीक है। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 370 ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕਿ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਹੈ। तो सुप्रीम कोर्ट के वल्लों भी हुण मोहर लग चुकी है केंद्र सरकार के फैसले ते। तो वड्डा फैसला अज लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वल्लों केंद्र सरकार के फैसले ते मोहर लगाई गई है। तो आर्टिकल 370 हुण इतिहास बन जाएगा, हुण वापस जम्मू कश्मीर दे विच यह नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। तो साफ कह दिता है कि 370 नूं हटाउणा संविधानिक तौर पर जायज़ है। सो आर्टिकल 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 370। सुप्रीम कोर्ट के वालों भी कहा गया है कि हुण अगले साल सितंबर तक जिहड़े कि चोणां भी करवाईयां जाण जम्मू कश्मीर दे विच। बरकरार रखिया है, मोहर लगा दी है कि हुण संविधानिक तौर पर इसनूं हटाउणा बिल्कुल जायज़ है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान के अधीन है और उसके अधीन ही रहेगा। तो चीफ जस्टिस वालों यह कहा गया है। सो आर्टिकल 370 हुण इतिहास बन जाएगा। मोहर लगा दी गई है कि 370 आर्टिकल नूं हटाउणा बिल्कुल सही है, संविधानिक तौर पर जायज़ है। सो वड्डी खबर है इस वेले दी सुप्रीम कोर्ट के वल्लों यह वड्डा फैसला सुनाया गया। आर्टिकल 370 ते सुप्रीम कोर्ट के वल्लों यह फैसला केंद्र सरकार के फैसले नूं बरकरार रखा गया। तो 370 आर्टिकल है जो कि जम्मू कश्मीर दे विच सी। काफ़ी लंबे समय तो कई बार इस ते बहस भी हुई है, कई बार कई दलीलां दित्तियां गईयां, पर हुण आखिरी फैसला सब तो उच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के वल्लों जिहड़ा कि यह फैसला सुनाया गया कि आर्टिकल 370 नूं हटाउणा संविधानिक तौर पर जायज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट के वल्लों यह वड्डा फैसला सुनाया गया कि 370 आर्टिकल नूं हटाउणा बिल्कुल सही है। तो जम्मू कश्मीर भारत के संविधान के अधीन है। तो जम्मू कश्मीर भारत का अनिखड़वां अंग है। तो अगले साल सितंबर तक चोणां भी करवाईयां जाणगियां। तो जम्मू कश्मीर तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया आज। तो
ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ।